Hello, my dear learners. We'll start with a new chapter in economics, that is, yes, industrial sector. So, yes, industries, important part of any country in order to develop. So, yes, we first start with the introduction of the chapter, which says that, yes, the nations of the world are having the combination of three producing sectors. We all know basic three sectors, that is agriculture, industry, and the service sector. Now, industry is obviously one of the important sectors, and प्रोडक्शन किया जाता है, important producing sector. It has a special importance in the economy. Now, except petroleum exporting countries, examples are given to you people. Saudi Arabia, all developed nations are industrial economies. Yes. Petroleum export, we all know, petroleum बहुत ज़्यादा important होता है, बहुत सारी industries में काम आता है. So, apart from petroleum exporting countries, ना, जो भी countries developed हैं, are industrial economies. The examples are USA, Britain, Japan. Now, economies with agriculture as main occupation can also be developed. ऐसा नहीं है कि है ना जो इंडस्ट्रीज में जिन कंट्रीज ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया डेवलपमेंट उनका ही होता है, ऐसा नहीं है. इवन एग्रीकल्चर से भी डेवलपमेंट होता है. द एग्जाम्पल्स आर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. बट over here, one thing is made clear that developed agricultural economies are very less in number. Yes, developed agricultural economies हैं, मगर बहुत कम है. Whereas there are many examples of developed industrial nations. Yes, इंडस्ट्रीज की वजह से जो कंट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है उसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है. सो इट इज बट नेचुरल दैट मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट in order to achieve economic development faster, जल्दी डेवलपमेंट अचीव करने के लिए ना इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज टू डेवलप. सो ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स है, डेवलपमेंट में काम आता है. And in detail we will be studying about the importance of industrial sector. So importance में again beginning में हमारे को थोड़ा बहुत दिया हुआ है, which says that industrialization, obviously it's necessary to have a speedy growth of the economy. Same चीज हमने देखी, development and growth, you know the difference between it. But yes, in order to achieve the development, in order to achieve the speedy growth, industrialization is must. To develop agriculture sector, to generate more employment opportunities. अब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप्ड होता है. कैसे होता है वो इन डिटेल इंपॉर्टेंस में आएगा. और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होंगी. विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल ऑल्सो increase. To do optimum utilization of internal resources of a country, complete good utilization of internal resources of the economy for quick increase in income and for improving the living standard of the people. Now, it is but natural that if the number of industries will increase, then automatically employment will increase, and if employment increases, yes, the standard of the living of people will increase because it will increase your income also. Employment opportunities बढ़ेंगी, income बढ़ेगी, standard of living भी बढ़ेगा. Therefore, it can be said that to overcome serious issues like unemployment and poverty in developing economies like our country, India, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज मस्ट. यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होती है, पावर्टी भी रिड्यूस होती है. सो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रीज का. Industrialization is not only necessary for economic development but also for social and political stability. Yes, social and political stability के लिए यानी कि प्रॉपरली अच्छे से सोसाइटी जो है वो भी आगे बढ़ेगी.
that can be proven from the factors. Yes, that from the factors that we will be studying right now. Very first is contribution in national income. ये तो सिंपल सी बात है. It will definitely contribute in national income. Now over here you are given the explanation in परसेंटेज के पहले कितना कंट्रीब्यूशन था और फिर बाद में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ. नाउ वी ऑल नो जब इंडिपेंडेंस था, जब इंडिपेंडेंट हम हुए थे, तभी ना एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो डोमिनेंट था, विच रिड्यूस्ड ग्रेजुअली विथ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था, मगर धीरे धीरे उसका इंपॉर्टेंस कम हुआ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर का इंक्रीज हुआ. नाउ ऑब्वियसली द रीजन वाज प्लानिंग. ड्यू टू प्लानिंग एफर्ट्स शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज इंक्रीज्ड इन नेशनल इनकम. यस, प्लानिंग की गई जिसमें इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दिया गया, सो ऑब्वियस ही बात है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम इंडस्ट्रीज का पहले के कंपैरिजन में इट विल इंक्रीज, बट स्टिल इट इज नॉट इनफ. फिर भी उतना नहीं है. नाउ यस, एज आई सेड, फिगर्स में हम लोगों को बताया गया है इन द ईयर 51 इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड 16.6% इन नेशनल इनकम विच रोज टू 27%. यस, वो इंक्रीज हुआ 16.6% से 27% एट कांस्टेंट प्राइसेस in the year 2013-14. Now, based on this, it can be said that contribution in industrial sector has increased in national income. It is also noticeable that in the growth of service sector, industrial sector has played extraordinary role. Yes, service sector के लिए भी industrial sector बहुत ज़्यादा importance रखता है, because इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से सर्विस सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है. ना फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जगह पे नई इंडस्ट्री बनी है तो वो नई इंडस्ट्री में देख रेख करने के लिए वहाँ पे जो वहाँ के अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक पर्टिकुलर जगह पे बनती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो वो इंडस्ट्रीज को देखने के लिए बाहर से वी ऑल नो कभी कभी जो अथॉरिटी होती है, जो हेड होती है, वो आते हैं लोग वहाँ पे विजिट करने इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को देखने के लिए. तो ऑब्वियसली दे नीड द प्लेस टू लिव. तो इस वजह से द हॉस्पिटैलिटी सेंटर्स, फॉर एग्जाम्पल जो होटल्स हैं, वो इंक्रीज होंगे ताकि जो बड़े बड़े नामी लोग हैं वो आके वहाँ पे रह सके. द नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. यस, एम्प्लॉयमेंट तो वी ऑल नो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा ही इफ द number of industries will increase. Now, we all know our country highly populated, so population ज़्यादा होने की वजह से लेबर सप्लाई जो है ना वो भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है. बट entire labor supply is not being utilized in productive activities. पूरा लेबर सप्लाई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है. It also indicates that serious issue of unemployment is being created due to lack of enough employment opportunities. Now, this is what we have already studied in the chapter. अनएम्प्लॉयमेंट में हमने स्टडी किया था कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत ज़्यादा है. वन ऑफ द रीजंस इज क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है. Now, planned efforts have increased employment opportunities in industrial sector. Yes, planned efforts किए गए तो obvious सी बात है इस वजह से जो opportunities हैं employment की in industrial sectors बहुत ज़्यादा increase हुई हैं. Now, yes, again with the help of figures, it is explained that in the year 1951, 10.6% laborers were employed in industries, which rose to 24.3% in 2011-12. Small scale industries in industrial sector generally use labor intensive production technique. Therefore, increase in small scale industries contributed substantially in increase in employment. Now, पहले तो फिगर्स में बताया गया जो बहुत ही सिंपल एंड ईजी है, 10.6% था.
in the year 1951, and the employment increased to 24.3% in the year 2011 and 12. And apart from that, जो small scale industries होती है ना, वो mostly labor intensive production technique अपनाती हैं, तो जिसकी वजह से employment बहुत increase हुआ था. The next is export income. Now, whatever is produced in industries, if produced in surplus, it can be easily sold to other countries. So obvious है, अगर हम बेचेंगे तो वी विल बी अर्निंग, एंड जो हम अर्न करेंगे सो दैट विल बी आवर इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स. नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो हम सब जानते ही हैं कि हम दूसरे कंट्रीज को सेल करते थे, मगर विथ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो सरप्लस प्रोडक्ट होता था, हम ऑब्वियस ही बात है वो भी दूसरे कंट्रीज को बेचने लगे थे. सो in detail explanation is given to you people in the textbook. That's similar to agriculture sector. Industrial sector can also increase its production volume and generate surplus in the economy. These surplus items can be exported to earn foreign exchange. सीधी सी बात है, foreign exchange हमारे country में आएगा, and yes, this foreign exchange can be used for inevitable imports. जो हमें चीज़ें ज़रूरी हैं दूसरे country से खरीदना, हम उसमें यूज करेंगे. स्कैर्स आइटम्स परचेज करने के लिए दूसरे कंट्री से हम यूज करेंगे. इन द ईयर 2013-14 इंडस्ट्रीज अर्नड अबाउट 2/3 शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इनकम. 2/3, यस ऑब्वियसली बहुत बड़ा शेयर जो था एक्सपोर्ट इनकम का, वो विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज आया था. Thus, industrial sector of the economy does not only satisfy the requirement of the citizens but also earns foreign exchange from exports of surplus production. Yes, अपने कंट्री में जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल होती ही है विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज, मगर साथ साथ में एक्सपोर्ट इनकम भी we earn. Thus, it indirectly helps in satisfying the requirements of other items in the economy. दूसरी items भी easily हम purchase कर सकते हैं. Let us move on to the next one, which is balanced economic development. Now, balanced economic development means development in all the different fields, in all the different ways, actually. Now, industrial sector is very useful in attaining rapid and balanced economic development. How? It is explained. Along with development of economy, there is rise in demand of primary commodities. Now, primary commodities we all know. एक तो है ना country की population increase हो रही है, दूसरा employment opportunities भी increase हुई हैं, तो people are able to earn. मतलब लोग अगर अच्छे से कमा पाएंगे, so obvious सी बात है जो डिमांड है प्राइमरी कमोडिटीज का that will increase. Now, in addition to this, excess income remains as saving. We all know इनकम जो होती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि जो हर बार वाला खर्चा जो मस्ट होता है, फिर उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट होती हैं, कुछ सेविंग्स होती हैं, कुछ पेमेंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं. सो यस, जो सेविंग्स होती हैं, हर घर में जो सेविंग्स होती है, दैट आर हेल्पफुल. दिस इंक्रीज डिमांड ऑफ लग्जरियस एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट्स. यस, धीरे धीरे जब सेविंग्स बढ़ती जाती है तो लोगों की डिमांड जो है ना वो बढ़ती जाती है, बिकॉज slowly people start demanding the products which increase their standard of living, show their status in the society. ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले इंसान सोचेगा कि अपने प्राइमरी गुड्स जो हैं, जो प्राइमरी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करे. धीरे धीरे कंफर्ट गुड्स, लग्जरियस गुड्स पे मूव करेंगे. सो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ टीवी, नाउअडेज अ मोबाइल फ़ोन, बाइक है, कार है, 2-व्हीलर है, इनका डिमांड जो है ना वो बढ़ता जाता है. दिस कैन ऑल्सो बी सेटिस्फाइड बाय इंडस्ट्रीज. In addition to this, government can also establish
several public sector enterprises in less developed or backward areas to increase employment and income in order to make speedy and balanced development of the economy. Now balanced economic development में यहाँ पे है ना एक दूसरी बात बताई गई है balanced development में कि जहाँ पे जो backward area है, जो remote areas है, वहाँ पे गवर्नमेंट खुद अपनी भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है ताकि उस एरिया का भी डेवलपमेंट हो. नहीं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो जाती हैं, वहां का डेवलपमेंट होता है, दूसरी एरिया में डेवलपमेंट इतना नहीं होता. सो दैट इज नॉट अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट. सो गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स. तो रिमोट एरियाज में भी इजीली इंडस्ट्री सेटअप हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो सकता है, वहां पे भी रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा एंड ऑब्वियसली this leads to balanced development. Now modernization of agriculture. Now agriculture may we all know there are different technologies used. बहुत सारी different machines use होती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स होते हैं, थ्रेशर्स होते हैं, स्प्रिंकलर्स होते हैं. तो ये सब तो बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रीज में ये सारी चीजें बनती हैं. तो दिस विल बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो. एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है. Modernization of agriculture is needed to increase the development of agriculture sector and to increase land and labor productivity. It is but natural कि अगर threshers, tractors ये सब use होंगे, so it means नया technology use हो रहा है and it will increase the productivity also. Industries can provide technology to help agriculture sector. Tractor, threshers, submersible pumps, equipments to spray pesticides, etc. and such other modern instruments can be provided by the industry. Now, इसके अलावा ना chemical based fertilizers, pesticides जो होते हैं, obvious सी बात है वो भी सब industries में बनते हैं, which are very helpful in agriculture. ये इनका importance हम already agriculture वाले chapter में कर चुके हैं. Finally, it can be said that by using the modern technology of manufacturing industries, development of agriculture could be made possible. Yes. Examples, tractor, threshers के अलावा chemical based fertilizer, pesticides जो हैं वो भी helpful होते हैं जो produce होते हैं industries में. Let us move on to the next importance, which is strengthens economic structure. Now, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एसेंशियल टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. अब इतने सारे इंपॉर्टेंस हमने रीड किए हैं, जनरल भी इंपॉर्टेंस हमें मालूम है, तो इससे इतना तो मालूम चल ही जाता है कि इट इज एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए. ना इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मगर यहाँ पे हम जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं वो है स्टील, आयरन, सीमेंट. और ये सब जो है ना, स्टील, आयरन, सीमेंट जो है वो मोस्टली हर जगह यूज होते हैं. इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रोड्स, ब्रिजेस टू मेक द बिल्डिंग्स फॉर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. तो ये जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्टील एंड आयरन मैंने बताया, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. नाउ इन एडिशन टू दैट इट प्रोवाइड्स व्हीकल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो भी हम सब जानते हैं. यस, ये सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, यहाँ पे दूसरी भी चीज़ बताई गई, तो सर्विस सेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया as it provides the vehicles for transportation. such buses हैं, ट्रक्स हैं, रेलवे, प्लेन, कार, टू व्हीलर्स एक्सेट्रा. और इन सब से इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है. Even the instruments of safety, protection, that is rifle, bullets, tanks, etc. are also produced by industrial sector, which reduce the dependence on other nations and make India much stronger economically. Yes, apart from whatever we have studied in this topic, rifles हैं, bullets हैं, tanks हैं, यानी कि for our defense also बनती हैं इंडस्ट्रीज में चीज़ें, एंड इससे हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनती है.
The next and the last importance as far as our textbook is concerned is change in social structure. Now, social structure में भी बहुत ज़्यादा change आता है. Due to industrialization, new industrial culture emerged. Now, due to which new values, बहुत सारी values लोगों में imbibe होती हैं. For example, discipline है, hard work है, competition है. Yes, with the increase in number of industries, it is but natural that competition level will increase. No, competition increase होगा तो obvious सी बात है लोगों के काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, न्यू आइडियाज आएंगी, जिस वजह से ऑब्वियस सी बात है कंट्री का डेवलपमेंट होगा. टीम वर्क होगा. यू ऑल नो व्हाट इज टीम वर्क. इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए. इफ अ टीम डिसाइड्स द टीम कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेशन स्किल्स, इनोवेशन स्किल्स, institutional capability gets developed and stands against superstitious fatalism, narrow psychology, orthodox behavior gets reduced. Yes, industries बढ़ेंगी, लोग जो हैं वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, उनको उनका कल्चर के बारे में मालूम चलेगा. They will know how to cooperate with other people because बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इतने सारे लोग, उनकी इतनी ज़्यादा सोच, तो ऑब्वियस सी बात है सबका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. डिसिप्लिन में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. कंपटीशन में रहना होता है आगे बढ़ने के लिए. टीम वर्क भी ज़रूरी होता है बिकॉज यस, टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. प्रोडक्शन के लिए कहीं पे भी टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज बहुत सारी जगहों पे एक टीम तभी ही अच्छे से काम कर पाती है जब दूसरे टीम का काम अच्छे से होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो कपड़े पे अगर डाई करना हो, कपड़ा अगर अच्छा होगा तो डाइंग भी बहुत अच्छी होगी. सो टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर एक टीम ने अच्छे से काम किया तो दूसरी टीम भी अच्छे से कर पाएगी. एंड इंटरनली भी टीम जो है उसे स्ट्रॉन्ग रहना होता है. सो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज होती हैं, साथ साथ में जो पुराने थॉट्स होते हैं, साइकोलॉजी जो नैरो होती है वो रिड्यूस हो जाती है. दीज टाइप्स ऑफ सोशल चेंजेस इंस्पायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यस, इस वजह से कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. सो विद द स्टूडेंट्स आई एम डन विद माई टुडेज ई क्लास. ऑब्वियसली आई विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. Till that time, you need to take care of yourself. Thank you.